Hi everyone, this is Dr. Saeed Mudabir Ahmed. I am from Jammu and Kashmir. मैंने अपना BSc ऑनर्स जोलॉजी में किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन ईयर 2013. मैंने मास्टर्स डिग्री जोलॉजी में की हुई है फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी in year 2015. Simultaneously, I got qualified with GATE life science examinations that were conducted by IIT Kanpur. इन 2016 मैंने CSIR नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 71. I have done my PhD from one of the prestigious institutes of our country affiliated to CSIR, that is CSIR Indian Institute of Integrative Medicines located in Jammu. During my PhD studies, I have mentored so many bachelor's and master's degree students for getting admissions in the various universities and institutions for their further studies, and also guided them for the national level examinations like CSIR, NetGRF examinations as well as GATE examinations. So from last 1 year, I am teaching zoology to bachelor degree students on academic arrangement basis and also 11th, 12th and NEET aspirants in offline mode. During my teaching, I use various skills, techniques, mnemonics and tricks of my own so that students will get the concepts very easily and clearly. So now I am going to discuss a very interesting and short topic from our syllabus that I have taken from Human Health and Diseases chapter number 8, जिसमें से मैंने लिया है antibodies and types of antibodies. इससे पहले कि हम जान जाए what is antibody, we should know actually what is an antigen. एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाए और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, इम्यून रेस्पॉन्स को इवोक कर दे, उसको बोलते हैं एंटीजन. एंटीजन में भी एनी फॉरेन मॉलिक्यूल लाइक बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर पैथोजन. And the molecules that are produced by our body against this antigen is called as antibody. वो molecules जो हमारी body produce करती है against the foreign molecule that is antigen, उसको बोलते हैं antibody. Antibodies को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, that is immunoglobulins. Like these are glycoproteins and these are denoted by Ig. इसको Ig से भी लिखा जाता है. जैसे हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. हर एक एंटीबॉडी का अपना पर्टिकुलर रोल है. जैसे IgG का इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्लेज रोल इन द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस हमें पता ही है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग, जिससे इम्यून सेल्स किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल या एंटीजन को एनगल्फ कर जाते हैं, फिर उसको डाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है कि दिस IgG एंटीबॉडी इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. और उसके बाद IgA एक एंटीबॉडी है डेट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सेक्रेशंस लाइक म्यूकस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है मदर्स मिल्क में जिसको कोलेस्ट्रम भी बोला जाता है. And the third antibody is IgM. This is the first antibody produced against any एंटीजन. जब भी कोई पहली बार हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाए या फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर कर जाए, वहां पे जो सबसे पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है दैट इज IgM. और ये वही एंटीबॉडी है जो किसी भी न्यूबॉर्न या नियोनेट में, जो भी पेट में ही होता है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज IgM. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एनी एंटीजन. And IgE is the antibody that is produced during the allergic reactions, and IgD is the antibody that is present as the cell surface receptors on the B cells. So overall यहाँ पे अगर हम important points की बात करें, सबसे पहला important point याद रखने का ये है कि IgG is the antibody which can cross the placenta, IgA is the antibody which is present in our secretions, and this is the antibody which is present in the mother's milk जिसको colostrum भी बोलते हैं. IgM is the antibody that is first produced in any infection or exposure to the antigen, or this is the antibody that is first produced in the neonate. And IgE is the antibody that is only produced in case of the allergic reactions, and IgD have no particular role, but this is present as the receptor on B cells. टॉकिंग अबाउट द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज, यहाँ पे मैंने एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है. मैंने पहले ही बताया एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल की बनी होती है. साथ में इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल है दैट इज द प्रोटीन. और प्रोटीन्स का हमें ये पता है, प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स मेड अप ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. सो हमारी एंटीबॉडी में 4 चेन्स होते हैं.
four different chains, like they have two light chains यहाँ पे जो बनी हुई है, these are the light chains, and we have two heavy chains, ये chain and ये वाली chain. All polypeptides have N terminal and C terminal. This is the C terminal of heavy chain, this is also the C terminal of heavy chain, this is the C terminal of light chain 1, this is the C terminal of light chain 2. और एन टर्मिनल पे हर एक एंटीबॉडी के पास एक ऐसा रीजन होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, वी एल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वी एच रीजन का मतलब होता है दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, वी एल का मतलब होता है दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन. वेरिएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, और यही वो पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी है जहां पे एंटीजन के साथ ये बाइंड करती है. हमें पता ही है कि अब एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगी और उसका डिस्ट्रक्शन कराएगी. सो दिस इज द साइट वेयर द एंटीजन इज बाइंडिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट. सो एंटीजन बाइंडिंग साइट वो साइट है जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी, एंड दिस इज प्रेजेंट एट द एन टर्मिनस. और हमें दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि हर एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन्स है, दो लाइट चेन्स है. ओके, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हर एक एंटीबॉडी में एट लीस्ट देयर आर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है. अगर मैं काउंटिंग करूंगा, दिस इज 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12 13 14 15 and 16 disulfide bonds are in one antibody. Okay, among which interchain disulfide bonds are 4 and intrachain are 12. Interchain means between the two chains, like this is one interchain disulfide bond, this is another, two, ये हो गया तीसरा, and this is the fourth. So total interchain disulfide bonds कितने हैं? That is 4. And what are the total intrachain? That is 12. Intrachain मतलब एक चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. अगर पूछा जाएगा आपसे कि इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, तो हमें पता होना चाहिए 12. अगर पूछा जाए लाइट चेन में कितने इंट्राचेन है, दैट इज 4. और अगर पूछा जाए हैवी चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, तो हमें पता होना चाहिए 8. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट which we should remember, और जिसमें से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है. और also we should know that there is a constant light region, that means Cl region, जो लाइट चेन में प्रेजेंट होगा, कांस्टेंट लाइट जिसको बोलते हैं, और कांस्टेंट हैवी रीजन जो कांस्टेंट रीजन होता है हर एक हैवी चेन में. जैसे इस वाली हैवी चेन की अगर मैं बात करूंगा, देयर इज कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3, मतलब ये कांस्टेंट रीजन्स है हैवी चेन के. और ये वाले कांस्टेंट रीजन है दूसरी हैवी चेन के, ये वाला कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, ये वाला कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का. सो आई होप दैट दिस इज प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल, और वेरी इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल का नहीं है.